Hello students, today we will talk about The Thief's Story, a very famous story by Ruskin Bond. You have already read a lot of stories by Ruskin Bond in your previous classes. Today we will talk about The Thief's Story, Chapter 2, Class 10th. This story is a very good story with a moral of how human values and relations are important in life and how these values can reshape a person. This story is about a thief. The thief is deeply impacted by Anil, who symbolizes education. There are only two main characters in this story, Hari Singh. This is also not real name of the thief, but he calls himself Hari Singh when he introduces himself to Anil. But it is not his real name. He actually changes his name frequently. He was only 15 years old. The thief Hari Singh tried to befriend Anil when he was watching a wrestling match because he wanted to steal Anil's money. Slowly, Hari Singh wins the confidence of Anil and starts living with him in his small room. Anil starts teaching him to read and write. Anil develops confidence and trust upon Hari Singh, but Hari Singh is not such a good fellow. He was also in search of right time to steal Anil's money. And once he got the opportunity to steal, he goes out to the railway station to catch a train for his hometown. When Anil got some money from some publisher because he wrote a book for him, he said that I have got some money today. And when he was sleeping, Hari Singh got an opportunity to steal the money and he ran towards the railway station. But unfortunately, when he reached the railway station, the train which he wanted to catch was moving at that time. He could catch the train by running, but he could not. He went outside the railway platform, he went into the market. He started roaming here and there because he was very confused after stealing the money of Anil. Actually, he is a very old thief and he had stolen lots of money from different types of people, and he also knows the different types of reaction of different type of people. But first time actually he met such a beautiful man, Anil. He did not want to break his faith actually. When he was sitting in the bench in a park at that night, he started thinking that how people react and how people will react after the money. He says that rich people became afraid after the theft, greedy people became angry, but the poor people showed acceptance. They accept everything. But Anil was different from all the three types of people. Hari Singh thought that he would be unhappy, he would be sad, but not for the money. He would be sad for the loss of faith because Anil had lots of faith on Hari Singh. He wants to make Hari Singh a very good human being. He wants to teach him so that he can lead a good and respectable life. So Hari Singh thought that Anil would be unhappy, but not for the loss of money, but the break of faith. So at last he decides to return back. He went to Anil's room, keep all the money under the mattress. In the morning, when Hari Singh woke up, he found that Anil had already woke up and made tea. And when he saw Hari Singh, he said that Anil said that you will be paid regularly from now, and he gave him 50 rupees. Hari Singh understood that
Anil knew about the theft of last night, but he did not say anything to Hari Singh. The story ends here. This story has a very good moral that bad people, if treated in a very good manner, they can also be on the right path. They can also, their life can also be reshaped. दिस इज द मोरल ऑफ द स्टोरी. इस स्टोरी को अगर हम हिंदी में बात करें बच्चों, तो एक चोर की कहानी है जिसने इस स्टोरी में अपना नाम बताया हरि सिंह. यह भी उसका वास्तविक नाम नहीं है. वह बार बार अपना नाम बदलता रहता है जब नए नए शिकार करता है. तो अभी उसे एक नए शिकार की तलाश है और इस स्टोरी का नरेटर भी वह खुद है, यानी कि चोर ही यह कहानी अपनी कहानी आपको बता रहा है. तो हरि सिंह चोर एक नया शिकार ढूंढ रहा है. एक जगह कुश्ती का मैच चल रहा है. वहाँ पे अनिल, एक 25 साल का एक राइटर है जो अलग अलग पत्र पत्रिकाओं में लिखता रहता है, उसको देखता है. तो हरि सिंह को लगता है कि इस आदमी को जल्दी से बेवकूफ़ बनाया जा सकता है. तो वह उससे दोस्ती करने की सोचता है, यानी कि अपनी बातों में फंसा के सही मौके आने पर इसको लूटने की फिराक में रहता है. अनिल से जब वो मिलता है तो अपना नाम हरि सिंह बताता है, लेकिन मैं पहले ही आप लोगों को बता दूं, यह उसका वास्तविक नाम नहीं है. वह बार बार अपना नाम बदलता रहता है. हरि सिंह के साथ मिलता है, थोड़ी सी उसकी चापलूसी करता है, कहता है कि आप तो खुद भी अच्छी फिजिक है आपकी, आप खुद जो है कुश्ती क्यों नहीं करते. तो अनिल कहता है मुझे देखने का शौक़ है, कुश्ती करने का शौक़ नहीं है. फिर किसी तरह से अपनी बातों में उलझा लेता है उसे और कहता है कि मुझे काम की तलाश है, आप मुझे अपने साथ रख लीजिए काम पर. तो उसने कहा कि मुझे, मेरे पास पैसे नहीं पे करने के लिए, अगर तुम खाना बना सकते हो तो मैं तुझे खाना खिला सकता हूँ, पे नहीं कर सकता रेगुलरली. तो कहता ठीक है, मैं बहुत अच्छा खाना बनाता हूँ. खैर वह उसे लेके अनिल अपने कमरे पे आता है. उस समय चोर जिसका नाम हरि सिंह, उसकी उम्र मात्र 15 साल थी, लेकिन इसी उम्र में वह कई लोगों को लूट चुका था और अब अगला शिकार वह अनिल को बनाने की फिराक में था. हरि सिंह अनिल के साथ अनिल के कमरे पे आ जाता है, थोड़ा बहुत चाय वाय बना लेता है और मौके की तलाश में है कि कब वो अनिल के पास एक अच्छी खासी रकम देखे और चुरा के भाग जाए. अनिल इस पर इतना विश्वास करता है कि सामान लाना हो बाज़ार से, सब्जी लानी हो, तो उसके लिए इसी को पैसा देता है और ये जाके बाज़ार से सामान इत्यादि लाता है. धीरे धीरे इसका विश्वास बढ़ता गया और अनिल इसको पढ़ना भी सिखा गया. वो इसको लिटरेट बनाने की फिराक में है ताकि यह पढ़ना लिखना सीख जाए और एक अच्छा जीवन बिताए. लेकिन चोर के दिमाग में आज भी ये था कि जल्दी मौका मिले और मैं क्या करूं, पैसा लेके भाग जाऊं. अनिल के पास कोई रेगुलर इनकम नहीं आती. वह एक लापरवाह किस्म का लेखक है. जब थोड़े बहुत पैसे मिलते हैं तो उसे खर्च कर देता है, इधर उधर उड़ा देता है. एक दिन उसे करीब 600 रुपये मिलते हैं. एक पब्लिशर, उसकी एक किताब उसे पसंद आती है तो किताब उसको दे के आया होता है. राइटर है, आपको मैंने पहले ही बताया था नहीं. तो 600 रुपये को अपने मेट्रेस के नीचे रख देता है और सो जाता है. इसके पहले हरि सिंह को छोटे मोटे मौके मिलते थे, 1-2 रुपये बाजार जाने के नाम पे कुछ ना कुछ उधर से वो बचाता रहता था. सामान लाता था तो कुछ कम लाता था, पैसे बचाता था. इस बार हरि सिंह को लगा कि इस बार तो अच्छी खासी रकम है, 600 रुपये. पुरानी कहानी है तो उस समय 600 रुपये की अच्छी खासी कीमत हुआ करती थी. तो ये 600 रुपये जब अनिल सो जाता है तो उसके मैट्रेस के नीचे से 600 रुपये निकालता है और रेलवे स्टेशन की तरफ भाग जाता है. इसने सोचा कि ट्रेन पकड़ के अपने गांव निकल जाएगा. जब वह स्टेशन पहुंचा तो लखनऊ एक्सप्रेस स्टेशन से बाहर जा रही थी, यानी कि मूव कर चुकी थी प्लेटफॉर्म से. यह चाहता तो दौड़ के कूद के चढ़ सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, छोड़ दिया ट्रेन को. फिर धीरे धीरे बाजार में घूमा. होटल में रुकना नहीं चाहता था कि कहीं पकड़ा जाएगा. बाजार में घूमता रहा. घूमते घूमते एक पार्क में चला गया और वहीं बेंच पे बैठ गया. हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, उस समय हो रही थी, और इसका दिमाग जो है ना घूम रहा था, सोच रहा था पुरानी बातों को. बारिश होती है, भीग जाता है उस समय, लेकिन उसका दिमाग जो है अभी भी एक जगह स्थिर नहीं है. इसके मन में एक ग्लानि हो रही है कि उसने अनिल का पैसा चुरा के बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि इसे लग रहा था कि अनिल
पहला व्यक्ति था जो इसका जीवन बदलना चाहता था, जो इसे सही रास्ते पर लाना चाहता था, पढ़ना लिखना सिखाना चाहता था। इससे पहले जो लोग भी मिले थे जिनको इसने लूटा था, उनके अलग अलग रिएक्शन हुआ करते थे। उसमें बैठ के ये भी सोच रहा है कि कैसे अलग अलग लोग चोरी होने के बाद अलग अलग रिएक्शन देते हैं। ये सोचता है कि रिच लोग डर जाते हैं कहीं और चोरी न हो जाए, लालची लोग गुस्सा दिखाते हैं, गरीब लोग स्वीकार कर लेते हैं। रिच मैन सो फियर, greedy man show anger, but the poor man shows acceptance. But he thinks that Anil is completely different from all these people. वो सोचता है कि अनिल इन सबसे अलग है। वह भी दुखी होगा, लेकिन पैसा जाने की वजह से दुखी नहीं होगा। वह इसलिए दुखी होगा कि उसका विश्वास टूटेगा, क्योंकि उसने हरि सिंह के ऊपर विश्वास किया था। फिर इसके मन में आता है कि नहीं, मुझे वापस आना चाहिए। काफ़ी भीग गया है, फिर भी वो दौड़ते हुए आता है। उस समय तक अनिल सोया हुआ है, रात है अभी। आके चुपचाप उसके बगल में लेट जाता है, पैसा वहीं मैट्रेस के नीचे रख देता है। लेकिन बारिश की वजह से पैसे गीले हो गए। सुबह हरि सिंह देर से उठता है, अनिल उससे पहले उठ गया होता है। चाय बना ली होती है अनिल ने। अनिल इसके पास आता है, इसको 50 रुपये की एक नोट देता है और कहता है कि अब तुम्हें रेगुलरली पे किया जाएगा और अब मैं तुम्हें सेंटेंस लिखना सिखाऊंगा, वाक्य लिखना सिखाऊंगा। हरि सिंह जो चोर है वह समझ जाता है कि रात की घटना के बारे में अनिल को पता चल गया है, लेकिन फिर भी अनिल कुछ बोलता नहीं है इससे। कहानी यहीं खत्म हो जाती है बच्चों। इस कहानी में ये दिखाया गया है, यह नैतिक शिक्षा दी गई है कि अगर किसी बुरे व्यक्ति को भी अगर हम सही तरीके से ट्रीट करें, सही तरीके से व्यवहार करें, तो वह भी सही रास्ते पे आ सकता है। यानी अगर सही मौका मिले तो अच्छाई जो है बुराई को अच्छे रास्ते पर ला सकती है। जिस तरह से अनिल यहाँ पे गुडनेस, अच्छाई और एजुकेशन का प्रतीक है, और कैसे हरि सिंह जो कि एक बहुत ही बदनाम चोर है वो अपना रास्ता बदल लेता है। इसके उदाहरण के साथ ही कवि ये कहना चाहता है कि एजुकेशन का भी हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है। जब हरि सिंह लौटता है तो अनिल की गुडनेस, अच्छाई तो उसके सामने होती है, लेकिन उसके दिमाग में ये भी एक ख्याल है कि अनिल जो है मुझे पढ़ना लिखना सिखा देगा और मैं इससे ज़्यादा पैसा भी कमा सकता हूँ और सही रास्ते पे जा सकता हूँ और एक सम्मानित जीवन बिता सकता हूँ। तो अच्छाई और शिक्षा दोनों लोगों को सही रास्ते पर ला सकते हैं। ये इसका मोरल है। थैंक यू।